some big breaking updates in Bangladesh. Let's go to Bangladesh. Anti-ISKCON slogans were raised by a crowd calling for a ban on the organization, with some warning of unrest if action is not taken. The crowd claimed that failure to ban ISKCON could lead to violence and societal breakdown. Meanwhile, ISKCON leaders like Chinmay Krishnadas Prabhu called for unity, urging followers to resist divisions. He issued a stern message to those attempting to sow discord, warning of potential consequences as the situation underscores rising communal tensions in the region. So big update coming in. Anti-Hindu, anti-ISKCON sloganeering coming in Bangladesh. And this is by a crowd calling for a ban on the organization. And some of them are even saying that there will be unrest if any action is not taken in this regard. Let's go straight across to my colleague joining us, Hridita. Hridita is joining us live from our Republic Bangla newsroom. Hridita, you know, this is very, very big development because we have been tracking the story, how, and we've highlighted to our viewers, how the minorities, especially the Hindus in Bangladesh, are being attacked, they're being threatened. We've seen this time and again, and now we see this development coming in. Go ahead, Hridita, take our viewers through latest coming in. We have been seeing since tensions has escalated in Bangladesh, Hindus have been a soft target always under the Yunus government, and now it comes in a channel, in a Bangladesh channel, Barta TV, where we have heard this Muslim leader who has been speaking and saying that to ban ISKCON. They have clearly stated that ISKCON should be banned, otherwise the roads of Bangladesh will be filled with blood. It will result to how the fascist rule used to go, like we had seen fascist rule earlier. So they are saying that that kind of rule would be also seen in Bangladesh. They say that this is a pure land of Allah. So here we are to prevent and we are to stop the ISKCON organization. So it's a clear indication on banning the ISKCON organization. Whereas we see Chinmay Krishnadas from ISKCON, he has said that the people who are walking in the way of banning ISKCON or walking in the way away from God, they will not see a brighter future. He has also said that the worldwide Sanatanis, the Sanatanis have risen worldwide, and the day is not that far. Hridita, I'll come back to you because we are getting Acharya Pramod Krishnam on this as well, joining us live. Our guest is joining us live, and I just want to come across to you about your reaction. We have seen time and again, Acharya Krishnam, how this issue of Hindus being targeted in Bangladesh has not just reached here in India, where India has taken a very strong stand. Even in the US, other countries have spoken against it. Now we are seeing a call to ban ISKCON, and also go ahead and they are saying, this crowd is saying that if this action is not taken, there will be unrest in Bangladesh. How much more unrest are we going to see over this? देखिए, सवाल ISKCON का नहीं है, सवाल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, सवाल है कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह का ये जो एक नफरत का माहौल और इस्लाम को लेके बनाया जा रहा है, ये बड़ा दुखद है। और इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी के दिल को दुखाओ। इस्लाम, जो पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद ने जो इस्लाम की बात की है, वो तो उन्होंने कहा है किसी के दिल को दुखाना गलत है, और किसी के भी दूसरे रिलीजन के रिलीजियस मैटर्स में दखल देना भी गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के सभी जो हेड ऑफ द रिलीजन हुए हैं या प्रमुख संत हुए हैं, उनका सम्मान करो। कुरान में ये स्पष्ट कहा है, लकुम दीनो कम वलय दीन। ये कुरान कहता है, कुरान की आयत है, लकुम दीनो कम वलय दीन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, यानी तुम्हारा धर्म तुम्हें शुभ हो, मेरा धर्म मुझे शुभ। इसका मतलब है पैगंबर यानी प्रॉफिट मोहम्मद ये मानते हैं कि दूसरा धर्म भी एग्जिस्ट करता है और करना चाहिए। तो इस्लाम का नाम लेकर के ये जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, ये जो टेम्पल्स को टारगेट किया जा रहा है, खास तौर से वहां जहां मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, मुस्लिम पावरफुल है,
तो ये बहुत ही अफसोसजनक है। ये केवल एक एंटी रिलीजन, एंटी हिंदू नहीं है, ये एंटी ह्यूमन है, ये मानवता के खिलाफ है। बांग्लादेश में जिस तरह से जो हो रहा है, ये हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदू मंदिरों को टारगेट करना। इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भगवान कृष्ण की भक्ति की बात करती है। भगवान कृष्ण उदारता की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, करुणा और प्रेम की बात। इस्कॉन टेम्पल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करता। मैक्सिमम लोग वो हैं जो प्रेम, भक्ति, संकीर्तन की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी अगर हमला होगा तो मुझे लगता है बांग्लादेश की हुकूमत को ये सख्त कदम उठाने चाहिए, वरना बांग्लादेश पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। पूरी दुनिया में इसलिए बदनाम हो रहा है कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जहां अभी तख्ता पलट हुआ। उसके पहले पाकिस्तान से उन्होंने अपनी आजादी की बात करी तो पाकिस्तान से अलग हुए। ये बहुत पहले की बात है, जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो सवाल उठता है कि एक ऐसा देश जिसने अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की हो, अपने बुनियादी सिद्धांतों और बुनियादी हक अधिकारों की डिमांड करके जो देश बना है, जो अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने की बात करता हो, उस देश में आज हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं। और हिंदू धर्म मैं समझता हूं कि अब वहां 2% मुश्किल से रह पाया है। तमाम जो देश आजाद हुआ था उस समय जो हिंदुओं की आबादी थी उन पर जुल्म करके, उन पर अत्याचार करके हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, हिंदुओं का रिलीजन बदल दिया गया, जबरदस्ती हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है इसको पूरी दुनिया को निंदा करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और वो जो जिस तरह के स्टेटमेंट पिछली तरफ मैंने ट्रंप के सुने, तो मुझे लगता है वो भी आशंकित है। अमेरिका इस बात से भयभीत है, यूके भयभीत है कि ये हो क्या रहा। इस्लाम के नाम पर ये टेररिज्म फैलाने, दहशतगर्दी और आतंकवाद फैलाने का जो काम हो रहा, मैं इसकी घोर निंदा। राइट। Also, Acharya Krishna, before we let you go, एक और क्वेश्चन है। Already we see Awami League ने केस फाइल किया against Mohammed Yunus, who is the chief advisor to the interim government, over involvement of killing of Hindus. Do you think कि इंटरनेशनल प्रेशर और होना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर to stop this kind of atrocities against Hindus? देखिए, बांग्लादेश की जो हुकूमत है, मुझे लगता है वो आतंकवादियों के हाथ में। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो प्रो टेररिज्म है। ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और भारत का वो एक नेबर, पड़ोसी देश है और प्रो इंडिया रहा है। भारत भी बांग्लादेश से बहुत अच्छा संबंध रहा है। लेकिन जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, अगर ये हमले होते रहे तो मुझे नहीं लगता कि भारत के रिश्ते अच्छे रहेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है, इंडिया इज ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड जहां से सनातन का ओरिजिन हुआ है। सनातन का ओरिजिन भारत से हुआ। बाकी जितने रिलीजन है दुनिया में, उनका ओरिजिन किसी का यरूशलेम से हुआ, किसी का मक्का से हुआ, अरब से हुआ। ये दूसरे तमाम धर्मों के जो ओरिजिन है ये दूसरी जगह से हुए, लेकिन सनातन और हिंदू धर्म इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है, ये भारत है। तो सनातन पे जो हमला होगा वो ऑटोमेटिकली भारत को कष्ट होगा और वो भारत पर हमला माना जाएगा। और मैं बिल्कुल आपके चैनल पे साफ कहना चाहता हूं, बांग्लादेश को, बांग्लादेश की सरकार को ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा कि वहां हिंदुओं पे हमले होते रहेंगे और हम लोग चुप रहेंगे। पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। पूरी दुनिया को इस समय जो फेनेटिज्म है, जो कट्टरता है, जो रिलीजियस टेररिज्म है, इसके खिलाफ एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा। हम हिंदू हैं, हम सनातन को मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, सनातन सबसे पुराना धर्म है। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही शाश्वत है। लेकिन हम सबसे प्रेम की शिक्षा देते हैं, हम चाहते हैं सब सद्भावना। हमारा सनातन का मूल उद्देश्य क्या है? प्रेम, त्याग, तपस्या, शील, दया, करुणा, क्षमा, सत्य, अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, करुणा। भगवान को कहा गया करुणा निधान। भगवान को क्या कहा गया? दया का सागर। भगवान को दीन बंधु। तो धर्म के नाम पर ये जो मारना है, धर्म के नाम पे हमला है, मंदिरों को जलाना है,
हम जिस धर्म के हैं हम दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, हम इस्लामिक भाइयों का भी सम्मान करते हैं, हम ईसाइयों का भी सम्मान करते हैं, हम बौद्धों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन कोई हमारे धर्म पे हमला करे और हम चुपचाप बैठे रहें, ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। दुनिया भर के तमाम जितने भी देश हैं उनको इस पे सख्त ऐतराज दिखाना चाहिए और बांग्लादेश की हुकूमत को सख्त फैसला लेते हुए ये कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे मंदिरों को तोड़ना बंद करा जाए। क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई छोटी मोटी पॉलिटिकल मुहिम है, ये टेररिज्म है, ये आतंकवाद है जो हिंदुओं को टारगेट कर रहा, पूरी दुनिया में टारगेट कर रहा। ये ठीक नहीं है, ये पूरे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। आज ये हिंदुओं पर टारगेट कर रहे हैं, कल ईसाइयों पर टारगेट करेंगे, कल ईसाइयों को तोड़ेंगे, परसों गुरुद्वारों को तोड़ेंगे। दिस इज नॉट फेयर, मोस्ट कंडेमेबल। Yes. मैं इसकी घोर निंदा। Yes, yes, thank you, Acharya Krishna, for joining us here on Republic TV and sharing what you have to say. This is a very, very important update, viewers, and we're getting a reaction from the ISKCON leader Chinmay Krishna Das Prabhu, who has called for unity. Let's go ahead and play it out. সংঘবদ্ধ হন, বিভক্তি থেকে বেরিয়ে আসুন। আজকে যারা বিভক্তি করে সমাজকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন সেই ধরনের দালালদেরকে বলছি, ভবিষ্যৎ আপনাদের জন্য অন্ধকার। সনাতনী সমাজ জেগে উঠেছে। আমি এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে ঘুরে গিয়ে দেখছি প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে উন্মেষ তৈরি হয়েছে, আর ছলনা করলে কেউ ছাড় পাবেন না। তো সেজন্য